होस्ट मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल, आपका अपना वेलनेस कंपेनियन। नेशनल न्यूट्रिशन वीक के मौके पर चलिए जानते हैं आज न्यूट्रिशन के एबीसीज। चाहे आप एक हेल्थ एंथुजियास्ट हो या यू जस्ट क्यूरियस डू मोर हेल्दी एंड बेटर फूड चॉइसेस, आज हमने कुछ न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट किया है जिनके वैल्यूएबल सजेशंस आपके हेल्दी गोल्स के तरफ एक कदम आगे ले जाएंगे और उनके पास आपके क्वेश्चंस के काफी सारे जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के साथ जो हमारे दर्शकों ने हमसे शेयर किए। Meanwhile, let me introduce the panel trio first. So we have Niti Nikam. She is a clinical nutritionist and a health coach and also the founder of Nutrify. We have Kushatra Bogre. He's a human educational expert and a dietitian, nutritionist, and a neurotherapist. We also have Geeta Premani and Kinchal, the co-founders of Optima Remedy, and we have Darshana Jain. She's a senior dietitian and founder of Perfect Body and Life. We also have Chetna Nagesh. She's a certified sports nutrition founder and a chief dietitian of Sattva Nutrition. So, hi and welcome to all of you on board of this Nutrition for a Sustainable Future webinar. क्वेश्चंस में मेरे से पहले सवाल ये है कि ऐसे आप जनरली वी वर लाइक नॉट वेरी श्योर आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट न्यूट्रिशन, तो ऐसे में क्या बदलाव आया है 90 के दशक से आज के दौर में जो अचानक हर कोई अपने डेली न्यूट्रिशन इंटेक पर ध्यान देने लगा है? Overload of information. So there is abundance of information and lack of knowledge, courtesy social media. So everybody is a nutritionist. And sometimes I honestly feel that, I probably wasted 7 years studying the subject, because if you lose 4 kgs, 10 kgs, and you become a nutritionist, you become an influencer, and that is what is confusing people around. So, there are fads happening, there are quick fixes happening, and which is the science is taken. We don't listen to our grandmothers who've been fixing things for us. And that's where the biggest problem is right now. Sure. And as we progress, see, as we discussed, that there is definitely a new generation of people who are more conscious about their intakes, especially कि वो कितना healthy खा रहे हैं। ऐसे में कौन से सुपर फूड्स हैं जो हम भारतीय सदियों से खा रहे हैं और जो काफी हेल्दी है लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं। Smita, here we have ghee. Ghee is one superfood which we have been eating from ages, but many Indians didn't know that it's a superfood. And in between, there was this fad running around that ghee increases cholesterol. So that is the reason we need to avoid ghee. But now it is considered as a superfood because of its herbal remedies or medicinal value what it offers. Apart from that, the kind of fat which it has. But of course, any superfood cannot be had in quantity what we like. There is certain limitations for each superfood, the quantity and the quality what you need to eat. So ghee is one such thing, and coconut oil, which Indians have been using for ages. Then there is turmeric, which Indians have been using for ages, and we didn't know that it's a superfood. But now when the Western world is selling it in the form of a turmeric latte, we have got the craze of having turmeric in everything. But Indian cooking uses turmeric in each of its preparation. So we needed a Western research to tell us, yes, turmeric is a superfood. Then there is drumstick and the flower of the drumstick plant. All of these are known as superfood, which gives us a number of nutrients and helps us to overcome iron deficiency, basically. And then there is jackfruit, which we thought will increase our sugar levels. Yes, of course, it increases our sugar levels when had in, more quantity. But actually, jackfruit is a superfood. Superfood is a term which is used for a food where the maximum use of the plant is made. So when it comes to jackfruit, we eat the fruit, we eat the seeds as well, which are seeds are again rich in nutrients like minerals and vitamins, and gives us good benefits of good fats as well. So jackfruit is one such superfood. And then there is amla, Indian gooseberry, which is a superfood, which actually, we neglect most of the times. It's a good remedy for our cold and coughs as well. So it has rich content of vitamin C, which increases the immunity of an individual. So these are the most commonly used superfoods in Indian kitchen.
which we Indians actually didn't know is a superfood, and we were waiting for some research papers or the Western world to certify them as superfoods. And now there's a rage of consuming these superfoods. But whatever superfoods, there is always some recommended quantity in which you need to take them. You can't take them in the quantity what you like. So for that, guidance from a certified, qualified dietitian is very much essential. आई थिंक गीता वुड लाइक टू ऐड समथिंग. गीता, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे कौन से अच्छे चीजें हैं जो हमारे किचन में ही अवेलेबल है और हम खा भी रहे हैं बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स बेनिफिट्स? Sure. So majorly, Chetna has answered the superfoods, but here I would like to add that turmeric and jeera, along with turmeric, but the Indians are not really aware that what they are putting into their daily sabzi is actually the superfood, and it's rich in antioxidants. It's a magic food for your gut health, I would say. And one important tip is, along with the turmeric, when people add a pinch of black pepper, send this message to everybody that whenever you are using turmeric, please put a pinch of black pepper in it to increase the absorption and get the maximum nutrient out of it. So let me just quickly add one thing, Smita, before we move on. Rather than looking at silos and this, we should be looking at the masale ka dabba as a superfood, And the best example of that, where people have developed this fear, your garam masala is one of the best thing that you can think of. So that's where your cinnamon is going, which has super power in it, right? The whole West is going gaga over cinnamon food. And of course, now we Indians are also realizing, so there are cinnamon teas happening and cinnamon rolls happening. So cinnamon goes in. There is maize that goes in, which has amazing health benefit. There is bay leaf, which is also known as tej patta. It brings down your sugar level. It works on your insulin resistance. So that goes in. There is dhania seed, which works with your blood pressure, which works with your water retention. There is jeera, as Geeta said, right? And then we have nutmeg, which can help you treat insomnia. So it is a concoction. And if you're using garam masala in all your preparations, you are absolutely good to go. You have your immunity intact. You have your strongest superfood का power with you right there in your मसाले का डब्बा. जी, मुझे सबसे पहले ऐड करना है जो प्योर काऊ घी का, मतलब जो घी के बारे में बोला गया था, तो वहां पे ये ध्यान रखना है कि वो प्योर काऊ घी होना चाहिए. मेक श्योर ऑलवेज कि प्योर काऊ घी हो, क्योंकि अगर वो बफेलो घी होगा तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा. ये ध्यान रखना है, काऊ घी हो और वो एक लिमिटेड अमाउंट में लेना है, जो आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बता देंगे कि आपको कितना लेना चाहिए. दूसरा आएंगे हम गरम मसाले पे. तो गरम मसाला अगर हम हर सब्जी में डालते हैं तो आपको ये देखना है आप कहाँ रहते हो, आप कौन से एनवायरमेंट में रहते हो, कौन सा मौसम हो रहा है. बिकॉज अगर गर्मी का मौसम है और अगर आप मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो अगर मैं हर चीज में गरम मसाला डालूंगी तो इवन विद इन वीक, एक वीक में या महीने भर में I will get some problem like piles or some burning issue. कहीं पे भी कुछ burning गरम issue मसाला आएगा. is always used in a very minuscule quantity. वो बहुत चम्मच भर के नहीं डाला जाता है, right? नहीं, हाँ, वो पिंच ही डाला जाता है, लेकिन क्योंकि जहाँ हम रहते हैं ना, इसलिए हमें पता है. तो सुपर फूड को भी अगर यूज करना है तो वाइजली यूज करना है. ऐसा नहीं है कि कभी भी यूज किए जाएं, क्योंकि मैंने देखा है सिनेमन वाटर में 25 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ. सिनेमन वाटर बोलते हैं तो लोग सिनेमन पिए जाते हैं. ऑल्दो ये सुपर फूड है तो उनका पावर भी सुपर है, तो हर टाइम नहीं लेना है, बिल्कुल याद रखना है. Moving on to my next question. Thank you so much, doctor, for this information. Because आपको जो भी सुपर फूड्स दे रहे हैं वो बिल्कुल ही एक बैलेंस क्वांटिटी में ले रहे हैं, और साथ ही साथ कहाँ रह रहे हैं, वो ज्योग्राफी पे भी काफी कुछ डिपेंड करता है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट कैसा है. एक और बहुत ही कॉमन सोच है लोगों के साथ कि जब भी हम कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जनरली हमारी ये सोच होती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगी, तो बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए कैसे हम अपने डेली न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में रोज शामिल कर सकते हैं. दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन आता है थॉट्स से, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द कॉलिन कैम्पबेल, जो सबसे बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा आपका न्यूट्रिशन थॉट से आता है. पहले आप देख रहे हैं सब लोग तो वही खाना खाते हैं, घर पे वही खाना खाते हैं, पर सब में एनर्जी लेवल क्यों अलग आता है? Why the people are getting different? Because the people are accepting how they are accepting, at what thoughts level they are using
at the time what they're eating, how they are eating, and how you utilizing the energy. That's the effects in the whole system. तो पहले तो ये बात समझ में आ जाए कि न्यूट्रिशन कभी भी खाने से नहीं आता, न्यूट्रिशन आता है विचार से, थॉट से, ठीक है। और दूसरा आता है, न्यूट्रिशन आता है व्यवहार से, बिहेवियर से। ये बात बिल्कुल समझ लेंगे, क्योंकि आज लोग, हम तो देख रहे हैं कि लोगों को ज्यादा डिफिशियंसी हो जा रही है, या फिर जिसके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं मिल रहा है, और जिसको खा भी रहा है तो वो भी खा पी के भी डिफिशियंसी हो रही है। क्यों? तो फर्स्ट वी रियलाइजिंग दैट द सुपर फूड्स, अब हम बोलेंगे तो खाने में तो देखेंगे जो बॉडी को जो नीड है वो हमको चाहिए रहती बाय फूड के द्वारा। वो हम, जैसे आप बोलेंगे सुपर फूड क्या है, कि पहले के जो चला आ रहा है वो है हलवा। है हलवा खाते थे लोग पहले। हलवा आप खाएंगे, थोड़ा सा हलवा खाएंगे तो आपको शाम तक पूरी एनर्जी रहेगी, ठीक है। और ऐसे, और ऐसा भी नहीं, कई लोग सिर्फ पानी भी कैसे पीते हैं, हाउ दे ड्रिंकिंग द वाटर, हाउ दे आर टेकिंग द एनर्जी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेन है पर्पस। यदि पर्पस रहा और गोल रहा तो आप में न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन है। और यदि पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, तो न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। अब आप कितने भी सप्लीमेंट खाते रहेंगे। ये बात समझेंगे, है ना? तो ये चीज है। एक नया टर्म सस्टेनेबल ईटिंग करके हमने आजकल सुना है, वो एक्चुअली क्या होता है? कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि सस्टेनेबल ईटिंग क्या होता है, और उसका इफेक्ट या उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे न्यूट्रिशन को लेकर। आई होप किंजल कैन आंसर दिस। तो सस्टेनेबल डाइट या सस्टेनेबल न्यूट्रिशन जो आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है, इट्स नॉट जस्ट फॉर अस, इट्स फॉर सेविंग द एनवायरमेंट, सेविंग द प्लैनेट, बिकॉज ऑफ कोर्स द इंडिविजुअल नीड्स, जो डाइट की नीड्स है, न्यूट्रिशन की नीड्स है, वो तो फुलफिल होनी चाहिए, बट जस्ट टू मेक इट मोर अवेलेबल फॉर एवरीवन विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ऑल, we just cannot put a burden on our land. Okay, so the way we are growing our food, कैसे वो हमारे planet को impact कर रहा है, वो सब भी हम sustainable nutrition को approach में ध्यान में रखते हुए we are planning all these strategies. Okay, so basically अभी फिलहाल 2023 is a millet year also. So suddenly everyone is talking about millets because आज तक हम सिर्फ हमारा staple क्या है, it's wheat and rice. North में is wheat and south में is always rice, ठीक है। So but now with the help of awareness with the 2023 of the millet month या millet year, okay, हम दूसरे सारे जो जवार है, बाजरा है, जो अंडर इतना कुछ जिसके बारे में हम बात नहीं करते थे, even those millets are being spoken about and people are getting awareness about it and we are using it and actually they are more nutritious because हम उसको मे बी डेली यूज नहीं करते रहेंगे, मे बी once a week, twice a week, but they are power packed. So this is the way we are also trying and implementing this through the sustainable diet and nutrition culture. Last 1 से 2 minutes we'll be having a rapid fire round. I think कुछ ऐसे भी सवाल है जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। उसमें एक बहुत ही फनी सा सवाल ये है कि जितने हम लोग मोटिवेटेड होते हैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए, उसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अट्रैक्शंस भी होते हैं। हर जगह स्ट्रीट फूड और जंक फूड अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे में इनसे कैसे बच के रहें? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट चेंज। अगर आप अंदर से बहुत रेडी हैं, then nothing can stop you from following a healthy diet. And of course we don't have to be very very strict कि नहीं 100% हमको healthy follow करना है. It's life, we have to enjoy it. So एक balance बनाना जरूरी है. But yeah, mindless eating या फिर अगर offers available है, you just jump on it, वो अगर हम behavior अगर control करें, and that is possible if you are ready internally. बिल्कुल। और कई बार हमें जैसे at night around 3 बजे हमें जैसे मैगी खाने की एक क्रेविंग होती है, तो क्या ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है? क्योंकि कई बार हम दिन भर अपने डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बट टुवर्ड्स द नाइट या ऐसा कुछ होता है जिसमें, या खासकर इमोशनली जब हम हाई या एक्सट्रीमली लो होते हैं, तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारे उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पानी सबसे बेस्ट है। अगर आप 2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो आपका क्रेविंग तुरंत ही चला जाता है। बिकॉज आप हमेशा ये ध्यान रखिए, क्रेविंग और भूख में अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक पतली सी लाइन है,
तो आप अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए, थोड़ा 15-20 मिनट का कंसल्टेशन लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि ये क्रेविंग है और ये आपकी बॉडी को क्या क्या नुकसान कर रही है। तो जब आपके माइंड में वो चालू हो जाएगा तो फिर आप नहीं खाएंगे ऑब्वियसली। बहुत लोगों को क्रेविंग होता है, तो वहां पे हम लोग यही सलाह देते हैं कि आप 2 गिलास पानी पीजिए और जस्ट थिंक अबाउट होल डे, पूरा दिन आपने जो फॉलो किया उसको आप सोचेंगे। ये 5 मिनट की क्रेविंग होती है और वो चली जाती है तुरंत। तो इस तरह से आपका माइंड सेट आप कर सकते हो। कई बार हम घर में देखते हैं, हम जो डाइट फॉलो करना चाह रहे होते हैं वो कभी कभी हमारे घर के खाने के अकॉर्डिंगली नहीं होता, या जो हमारी मदर्स हमारे लिए प्रिपेयर कर रही होती है उनको मनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या आपके जो घर का जो खाने का पैटर्न है और आपका खाने का पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिकॉज यू हैव सम हेल्थ गोल्स। तो हमारे व्यूअर्स ने ये भी पूछा है कि ऐसे में कितना डिफिकल्ट होता है अपने हेल्दी रूटीन को स्टिक करके रखना। एज यू राइटली सेड दैट मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप मोटिवेटेड है तो जनरली आप वही करेंगे। बट व्हाट इज योर इनपुट कि अगर आप मोटिवेटेड हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्विंस आपके जो बाकी लोग हैं फैमिली के खाने वाले, जिस जो हमारा जो मेन जो खाना है, क्योंकि हम लोग जनरली साथ बैठ के ही खा रहे होते हैं, दैट्स द आइडियल वे टू हैव लंच डिनर और वट एवर फूड यू आर हैविंग। तो इन दैट केस आप क्या सजेस्ट करेंगे? इफ योर फूड इज नॉट सस्टेनेबल, अगर आप अपने फैमिली से बिल्कुल अलग खा रहे हैं, सो लेट्स से इफ यू हैव अ हेल्थ गोल, आप उसको 2 महीने 3 महीने के लिए कर लेंगे बिकॉज यू पेड टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बट फिर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल ईटिंग, राइट? सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ काम करें या अपने आप जो भी देखें, बट द फूड हैज टू रिवॉल्व अराउंड योर कल्चरल ईटिंग पैटर्न, योर ट्रेडिशनल ईटिंग पैटर्न और जो आपका लोकल है। सो ओनली दैट इज सस्टेनेबल। क्योंकि अगर क्या होता है, एंड दिस इज यो, अगर आप 3 महीने कर लेंगे क्योंकि मैंने 10 किलो का टारगेट रख लिया है और अब मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, जो मेरे परिवार वाले खा रहे हैं वो नहीं खाऊंगा, मैं तो स्मूदीज ही पी लूंगा या वेजिटेबल सूप ले लूंगा या सिर्फ हाई प्रोटीन खा लूंगा, राइट? सो 3 महीने के बाद क्या होता है, अगर 10 किलो लूज किया होता है ना तो 12 किलो गेन होता है। सो उसमें दो चीजें होती हैं, आपकी हेल्थ बर्बाद होती है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, एंड देन यू गो ऑन अ पैटर्न ऑफ बिंज ईटिंग। वी हैव सीन दीस केसेस इवन इन बेरियाट्रिक सर्जरी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी वो डाइट सस्टेनेबल नहीं है ना तो उसको मत फॉलो करो। एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक अगर पेपर पे आप डाइट प्लान बना के दे देते हो, it is going to be very difficult for the client to follow that unless you counsel the entire family, specifically the moms, क्योंकि वो बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं। नो मैटर बच्चे की एज जो भी हो, उनको ऐसा लगता है कि अगर डाइट पे है मेरा बच्चा सो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू लूज वेट, वो चब्बी नहीं दिखेगा, हेल्दी नहीं दिखेगा। बट एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है यहाँ पे कि you just not counsel the client but also the family members so that they don't hinder the health goals of the client. Thank you so much What we for do, all like, the doctors who joined, the nutritionists who joined today for this National Nutrition Week की हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने आपने जवाब दिए जो जनरली ऑफ द ट्रैक थे, क्योंकि कई बार हम डाइट फॉलो कर रहे होते हैं बट स्ट्रिक्टली नहीं कर पाते और हमारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते। आई once again thank you all of you to join us today for this webinar.